I'm back to your story, and you were talking about being jack of all trades, table tennis state champion, academically gold medalist. It's a fantastic combination to have. And normally, these people also are a very confused lot when they are selecting their career options. Yes. कि अब करियर में क्या करना है, राइट? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, अबव एवरेज खेलता था, म्यूजिक बहुत पसंद था, अबव एवरेज गाता था, बट घर वालों को इंजीनियर बनाना था. तो इट्स अ वियर्ड डाइकोटॉमी टू गेट इनटू. तो एंड आई कैन अंडरस्टैंड अ वेरी सिमिलर स्टोरी. तो आपने कैसे डिसाइड किया कि अब करियर में क्या करना है, मतलब नौकरी कहाँ करनी है? So honestly, coming from a Bania family and living in a small town, being 3 daughters, इतना ज़्यादा privilege नहीं था कि भाई करियर बनाने का ऑप्शन हमें मिले. You were 3 daughters. We were 3 daughters, and my mother was a very different person, but usually it was my grandmother who used to rule, in the sense कि उनकी जो भी वो बोलती थी वही घर पे चलता था. And she was more of a opinion that कि लड़कियां हैं उनको अच्छे सेटल डाउन करो, let them get married and then they decide what they have to do. Grandmother का वो thought process था. And dad was also kind of aligned, though dad was always confused कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, but it was like a dichotomy कि वो confused रहते थे कि किस डायरेक्शन में बच्चों को लेके जाना है या क्या करना है. तो हमारे लिए थोड़ा स्ट्रगल था इनिशियल फेज में to even go out, do something, or so we were not struggling to decide कि क्या करियर बनाना है. we were struggling कि कैसे बाहर जाना है so that we can do something about our career. कुछ भी मिल जाए बस बाहर जाना है अभी तो, फिर we'll figure it out. ये तो इंडिया में लाखों में भी करोड़ों लड़कियों का सिमिलर सिचुएशन है. Yes, but the problem is कि लाखों लड़कियां ना फाइट नहीं कर पाती. हेलो एवरीवन, बढ़ता इंडिया देखो का एक और एपिसोड. मुझे ये बताइए कि आप दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर से हैं. चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो आप इन तीनों शहरों में से एक शहर में तो काम कर चुके हैं. एंड इन दोस सिटीज वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट ब्रांड्स ऑन अ बाइक और अ स्कूटर दैट यू सी वेरी ऑफन इज जिप इलेक्ट्रिक. एंड यस, मुझे आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट दिख रहा है. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज बात करने के लिए जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर से, राशि से, ऑन हर जर्नी, ऑन हर struggles, on her wins, and on her entire transformation while making Zip what it is today. आइए देखते हैं. I think that is where the difference is. We fought it back. We fought our battle. I mean, we 3 were very, very strong-headed girls that they got in their family. Because हमें बड़ा क्लियर था कि हमें लाइफ में कुछ करना है. We just don't want to get settled down, get married and get settled down. And उसके लिए we were always like anti daddy sometimes, and we like always having altercations in the family कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं चलेगा. Because we feel that being independent financially gives you a lot of wings to take your own decisions, right? And that's a reality. Today if I want to get married to some guy, that freedom only I'll get if I am financially independent. Yes. Otherwise it is my parents' decision that I have to follow at the end of the day. So that clarity I had from day one, and all 3 of us for that matter. So that was a struggle that we had to do, but once we came out there was no looking back. And we got the wings. And so कॉलेज के बाद आपने नौकरी करी? हाँ जी. तो मैंने कॉलेज के बाद I started with a company called Standard & Poor's Capital IQ. There I worked for 5 years. So 5 years? Yes. First job? Yes, Very my good. first job, 5 years. But वहाँ आने के बाद then we were out and we. कहाँ पे था ये, कौन सा शहर? गुड़गांव ही था, but I used to live in Delhi. But इतना था कि it was just that one struggle that we had to do to come out. But once we were out, my dad was very supportive. My grandma also understood कि ठीक है बच्चे बाहर हैं. It's okay, let them do what they want to do, and then they become very comfortable with our kind of expectations in life. Right. Because हम बहुत ही clear थे कि हमें life में करना ही करना है. Right. So my sister took that plunge. She came out. She started working in a company called Ernst & Young. And then उन्होंने American Express join की. I started with Standard & Poor's Capital IQ, and then I started my first venture. Of course, we'll talk about इस पे I'll again stop you here for the audience. यहाँ पे बहुत सारे क्रैक के बच्चे ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे. राशि ने आपको अभी, इतने सक्सेसफुल फाउंडर ने आपको बताया कि उन्होंने अपनी पहली नौकरी 5 साल करी थी, और मैंने खुद अपनी पहली नौकरी हिंदुस्तान टाइम्स में 7 साल करी थी. और एक बार उनसे समझने की कोशिश करते हैं, और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि आप शुरू में
बहुत ज़्यादा स्विच मत कीजिए, उससे लर्निंग होने का टाइम नहीं मिलता है आपको, क्योंकि आप पूरा साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, जहाँ पे आपके एक्शंस का रिजल्ट नहीं दिखेगा कि क्या आया है, तब तक योर लर्निंग इज नॉट कंप्लीट, यू आर जस्ट एस्केपिंग द डिफिकल्ट टाइम्स। एंड देयरफॉर आपका करियर जब एक शेकी स्टार्ट लेता है शुरुआत के 2-3 साल 4 साल पहले, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बन पाता है और एक बड़ा करियर बनने में प्रॉब्लम होता है। तो वुड वांट टू अंडरस्टैंड राशि फ्रॉम यू आल्सो फॉर आवर ऑडियंस कि आपका 5 साल का स्टिंट ने आपको कैसे हेल्प किया टू सेट अ बेस फॉर योर करियर? So I think though what you said is completely true, but मेरे ख्याल से 3-4 years was good, but I think 5 years was a little stretch for me, because उसके बाद मैं थोड़ी discontent होने लग गई थी, because I was not getting a lot of learning post some years of my job, and then I think my marriage changed my life a lot, and that's why I say it is very important to be very sure about who you're getting married to and who's your life partner is. And I really give a lot of credit to Akash for that, because he shaped my life a lot, because when I came out of Almora, I never thought that I can change my life and this is how my life can shape up. But when I was discontent, I started talking to Akash about this, and we started discussing कि कैसे करना है, क्या करना है, and then he said that why don't you start something of your own if you're not very happy with what you're doing. And that is where it hit me hard कि because उससे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ करना है. अभी शादी किस उम्र में हुई? I was 26 years old. And I think ये एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि what is the right age to get married, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका right life partner है ना, it is always good to get married irrespective of age. irrespective of age. पता कैसे लगेगा right life partner है? वही तो आपको समझना पड़ेगा. हर किसी के checklist होती है. You need to have very clear checklist कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है. See, adjustments हर किसी को करने हैं, but किन चीज़ों पे adjustments करने हैं ना, वो important है. And आपके बाउंड्रीज क्या है, आपके थ्रेशोल्ड्स क्या है? If that adjustment is questioning your identity ना, that adjustment is not required. Then you should not be okay with that adjustment. Right? So वो clarity आपको होना बहुत ज़रूरी है. This is a killer line, ना? Wow. If the adjustment is questioning your identity, it's not worth it. It's not worth it, yeah. Wonderful. So काम किया आपने 4-5 साल, and then शादी होने के बाद अपना पहला स्टिंट शुरू किया या उससे पहले? So I was working when we got married, and post 2 years of our marriage, I started Let's Flaunt. But what's the name you're saying? Let's Flaunt. Let's Flaunt. But I did not start Let's Flaunt just after leaving my job. कि चलो जॉब छोड़ते हैं, बिजनेस करते हैं, ऐसे मैंने नहीं काम शुरू किया. Because as I said that I always wanted to be financially independent. That is one thing that as a woman I strongly feel. कितने भी आपके अच्छी फैमिली हो, वेल ऑफ फैमिली हो, फादर कितने भी आपके रिच हो, आपके हस्बैंड कितना अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपका ब्रदर कितना सपोर्टिव हो, एज अ वुमेन you need to be always financially independent. You need to always have your own control in your life, and that is the reason I wanted to do my own startup, but I was not sure how soon I'll start making money out of it. So I said ki let me, and it is a very lonely journey. Startup is a very lonely journey. Very lonely. Yeah. You must be knowing that very well also. Yeah. So I said ki let me start it with my job and see how it works for me. So and those 2 years were the toughest years of my life, I would say, when I was doing my job as well as I was doing my Let's business. 2 साल तक मैंने घर आते थे और 3 घंटे आई यूज्ड टू वर्क ऑन माई बिजनेस. रात को 11 बजे सोते थे, सुबह 6 बजे उठ के अगेन बैक टू ऑर्डर्स, क्या चल रहा है, बिकॉज इट वॉज बेसिकली अ फैशन पोर्टल, ई-कॉमर्स फैशन पोर्टल था. उसमें हम लोग टी शर्ट्स, कोस्टर्स, वॉल क्लॉक्स, ये सब चीज़ें बेच रहे थे एंड कस्टमाइज बेच रहे थे. तो ये कौन सी ईयर में शुरू किया था आपने? ये हमने किया था 2013 में. 2013 में, और शादी हुई थी उससे पहले 2011 में. या तो एक्सप्लोरेटरी स्टेज थी 2013 में. 2014 में फुल्ली स्टार्ट कर दिया था. 2015 में आई लेफ्ट माई जॉब, जब आई क्रिएटेड अ बेस एंड आई न्यू आई वॉज मेकिंग डिसेंट मनी आउट ऑफ इट. इट वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड आई न्यू आई कैन डू इट वेल. सारे डॉट्स कनेक्ट कर चुके थे बाय दैट टाइम, एंड
I was comfortable doing it. So then that time I left my job. So ये भी एक बड़ा सवाल होता है लोगों का कि यार जॉब कब छोड़नी चाहिए, जॉब कब छोड़नी चाहिए, या फिर बिजनेस शुरू किया नहीं चला फिर क्या होगा. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं चला तो जॉब तो हमेशा है ना. What is the not giving a try, and not trying is the bigger risk than leaving a job and trying a business. We always miss 100% of the shots we don't take. Exactly. तो पता ही नहीं लगेगा. रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, एंड वो रिस्क नहीं है ना, रिस्क लेना रिस्क है. क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि आप क्या कर सकते हो. आपने अपने पोटेंशियल को ही नहीं एक्सपीरियंस ट्राई किया, तो वो रिस्क है ना. जॉब तो आप 2 साल बाद बिजनेस नहीं चला तो भी कर सकते हो. You can go back to old job, you can explore more options. हमारे आई थिंक एक एनवेलप बनता है कंफर्ट का हमारे आसपास, और वो एनवेलप इतना ज़्यादा engulfing होता है. It's not I'm not just talking about, I've realized from my own life, it's not just about happiness. हम दुखी भी है, करेक्ट, उसका भी एक एनवेलप बना लेते कि मैं ठीक हूँ इसके अंदर और चलेगा. in our bad jobs, in our bad relationships, in that sometimes even in that bad movie, you're just saying कि चलो शुरू ही कर ली है तो देख लेते हैं. तो that way that is what I told you ना कि 1 or 2 years I was not happy, but I was stretching myself. No, I could relate to that. Relate to that what you're saying. And उसके बाद for 99% of us to come out of that circle, break that circle and say कि now I want to break the shackles and do something new. एक बार फाउंडर बन जाते हो तो तुम्हें आदत हो जाती है बार बार अपने ही बनाए सर्कल को तोड़ने का. करेक्ट. बिकॉज हमने जो दुनिया बनाई है वो खुद नहीं बनाई है, किसी और ने तो बनाया नहीं है. पर उसको तोड़ने की हिम्मत रखना बहुत मुश्किल होता है. That's true. कि मैं बार बार उसे तोड़ पाऊँ. फाउंडर्स में मैंने नॉर्मली देखा है कि वो हिम्मत वो ऑर्गेनिकली अंदर से निकलता है, बिकॉज इससे पहले उन्होंने किया है. राइट. इवन टुडे आई एम फ्रॉम अ very very lower middle class background. The way I grew, I'm from Kharagpur, it's a city in Bengal. And when I got the first private job, my dad had been in railways for 37 years, so first job till retirement. When I got the first private job, there was panic at home कि private में क्यों काम कर रहा है, तो बहुत गलत हो जाएगा लड़के के साथ. And there were relatives. And now you are a founder. Yeah, and imagine what they went through. That startup. When I left that private job. Yeah. My parents, some people in my extended family didn't talk to me for months. I can relate that. When we started Zip Electric, exactly the same thing happened with us. So and that is how a major part of India is. Yeah. Even my customers today are coming from that background. Yes. और फिर तो मतलब वो एनवेलप तो सबके आसपास है. अब तो आई वुड से फिर भी लोग बहुत ओपन अप हो गए हैं स्टार्टअप्स को लेकर, एडवांस हो गए हैं. शार्क टैंक में दुनिया बदल दी है, लोगों का अप्रोच बदल दिया. बट down the line 7 years ago, things were very different. 8 years ago, very different. And people who started in 2010, 11, companies like Zomato's and Swiggy's of the world, they like changed the world. Yes, they have played a big role in changing who we are. And therefore मुझे बहुत बार लगता है कि our job for the next generation is to just expose them. Exactly. वो अपने आप पिक कर लेंगे, उठा लेंगे उन्हें क्या करना है. For our kids and maybe for even our employees, even whoever we are able to guide, mentor, are we able to expose them, not tell them what to do and what not to do. That's the worst thing that I think our families have done to us, that this is what you should do and this is what you should not do. Forget about getting a private job. Now I'm reminded, I got a job with Tata Motors after my engineering. I'm a mechanical engineer, unfortunately, and I don't know anything about mechanical engineering. Right, those 4 years were fun, but after mechanical engineering, I got a relatively respectable job with Tata Motors. And although my family had a feeling of sacrifice that he's not going into a government job, but they're still okay. Tata, तो चलो चलेगा, adjust कर लेते हैं. ठीक है. And then I decided to not take up the job and went for my MBA. Now, because of a government college, my fees during my engineering was paltry, right? It was some 10,000 rupees a semester. And straight I was getting into an MBA, and that was in Mumbai. There's a college called SP Jain. There the fees was 12 lakhs. And they were saying they have gotten a job. And you're leaving that, you're getting into an MBA which that much savings they didn't have for their lifetime. And I had to take a loan which they don't even have lifetime savings for. That fear
that a loan will come, you are going to now spoil your life, completely destroy your career, and I'm seeing a different life. And then you get into a private job, oh God, mayhem. Even today they are saying कि तूने तो हमारी कोई बात नहीं मानी बचपन से. But they must be proud of you now. If they are completely aware of what's going on. Yeah. It's very difficult to explain even now. When I would meet them and explain them, this is what is going on, they would feel more fear than pride. I'm telling you the truth. Yeah. Even I now. can relate with that. Yeah. And they would say कि अच्छा काम कर रहा है तो कहाँ है बैंक में पैसे दिखा. I mean, then that should be the direct outcome. Yeah. And even today, my startup has not reached a stage जहाँ मैं उन्हें बैंक में पैसे दिखा सकता हूँ. Correct. So it's still struggling. Yes. And that struggle would make them go through sleepless nights. Yeah. एंड मैं अपने ऑडियंस के लिए भी बोल रहा हूँ कि आपको अभी तो कंपैरेटिवली बहुत ओपन हो गया है, रिस्क ले सकते हैं, एंड आपको फिर भी शाबाशी देने के लिए लोग मिल जाएंगे अगर आप रिस्क ले रहे हो तो. I think you're doing a fantabulous job by doing this podcast and exposing, Yes. as you rightly said. Yes, I hope बहुत सारे लोग ये देखें और उन्हें लगे कि घर पे जो भी हो रहा है मैं फिर भी अपने पैशन को, अपने दिल को फॉलो कर सकता हूँ. एंड एग्जाम्पल्स लाइक यू वुड हैव आल्सो कम अप from similar cities, similar backgrounds, and now running such a successful brand together. Yeah, my journey was very similar. I think lot of girls, I keep saying कि यार you have to fight your battle. I mean, you cannot just let go of things just because parents are not supportive. या ये support, मतलब fight तो करना ही पड़ेगा लाइफ में. हर चीज़ प्लेटर में नहीं मिलेगी जिंदगी में. कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी. एंड यू हैव टू पेव योर वे आउट. यू कैन नॉट थिंक यार ये नहीं हुआ तो चलो सैक्रिफाइस कर लेते हैं. एज आई सेड कि यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट व्हाट sacrifices you can make in life. So and true. what you can't. And accordingly you have to direct your life, because at the end of the day it is your life. लोगों का क्या है, वो तो बोल देंगे कि ठीक है तुम ही ने उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट तुमने किया था. सही बात है. राशि, एक बात बताइए, लड़की होने का क्या फायदा और नुकसान होता है इन बिकमिंग अ फाउंडर? पहले जिंदगी से शुरू कीजिए and then take us to a founder. How easy or difficult is the journey being a girl? See, I would say that I am, as a girl, I think जो मेरा एक struggle था being a girl to struggle a little with the family was definitely there. But I think मैं उसको भी बहुत ज़्यादा weightage नहीं दूंगी, because at the end of the day I was a lucky kid to come from a well-off family that my father did not even allow me to take a loan. He said कि जब मैं हूँ तो क्यों लोन लेना है, अगर मैं allow कर रहा हूँ then you go and do whatever you want to do. Because I was like कि मैं तो सब कुछ ले लूँगी, आप बस मुझे allow कर दो. You know, that is the kind of intent I had. But as a woman, I would say what women has to fight with is the mentality at every phase of their life. You know, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. जब हम दोनों जिप इलेक्ट्रिक शुरू कर रहे थे, मैं और आकाश, तो एज यू राइटली सेड कि पेरेंट्स रिलेट नहीं कर पाते, तो हमारे पेरेंट्स भी रिलेट नहीं कर पाए थे, बिकॉज आकाश वाज इन अ वेरी गुड सेटल्ड जॉब, आई वाज डूइंग माय बिजनेस एंड आई वाज मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, एंड वी बोथ आर वेरी सेटल्ड, एंजॉयिंग लाइफ. साल में 3-4 ट्रिप्स मार रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे हम लोग, बिल्कुल बहुत ही रिलैक्स ज़िंदगी जी रहे थे. एंड सडनली वो कीड़ा जो था कि नहीं ज़िंदगी में तो कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना है, तो वो हमेशा ही था. लेट्स फ्लॉन्ट करते करते भी वी वर ऑलवेज इन एक्सप्लोरेटरी स्टेज कि और क्या करें, व्हाट इज़ दैट वी कैन डू विच कैन क्रिएट अ मार्क और समथिंग लाइक दैट. तो जब जिप इलेक्ट्रिक शुरू किया तो पेरेंट्स and we both were equally involved. Okay, we both left our respective jobs and got involved in Zip Electric. But parents ने मुझे बोला कि यार तुम आकाश को क्यों नहीं समझा रहे कि ये जॉब, ये बिजनेस ना करे. So it's a very small thing, but if you understand the essence of it, they did not even consider me starting a business with Akash, but they thought that it is Akash who is starting the business and I should be the one as a bahu or as a wife that should take care of it and should guide him to not do something like this and take such a big risk. You know, so ये जो एक अप्रोच है, ऑटोमेटिक बायस है, वो कहीं ना कहीं आप एवरी नाउ एंड देन एक्सपीरियंस करते हो. थोड़ा सा जिप इलेक्ट्रिक के बारे में हमें समझाइए कि एक तो ईवी स्पेस में है, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस अबाउट दिस एंटायर न्यू
EV revolution that is happening. I have recently bought a EV car myself, so I am positively biased right now toward what you are going to say. But what do you think? How is this revolution changing? Second is Zip Electric का क्या यहाँ से आगे का क्या सपना है? क्या तोड़-फोड़ मचाने वाले हैं आप? See, 5 years ago or 6 years ago, I think EV was a very new concept in the industry. People were not very sure of it. Financing was not there. The right product was not there in the market. I think we have come a long way from there. Lot of financing options has opened because financing is the backbone for any industry to grow, right? Be it EV or IC engine or anything else, financing needs to play a pivotal role in the creation of that ecosystem. So that has unlocked in a big way for the EVs. EV का जो infra था, from battery swapping system to charging system to having the right product, गवर्नमेंट मैंडेट्स बहुत आए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है इसके ऊपर, सब्सिडीज़ लेकर आए हैं, फेम 1 सब्सिडी, फेम 2 सब्सिडी, उन्होंने मैंडेट्स डाले हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज हैव टू इलेक्ट्रीफाई देयर व्हीकल्स बाय 2030. बहुत सारे स्टेट्स में ये मैंडेट्स आ गए हैं. गवर्नमेंट ने GST के थ्रू बहुत सपोर्ट किया है फॉर प्रोक्योरिंग द व्हीकल्स, फॉर रेंटिंग द व्हीकल्स. इट इज़ जस्ट 5% GST, which has 5%. Yes, which has worked wonders for the growth of GST. 13% बहुत होता है. बहुत होता है. एक तो GST सबसे बड़ा हेडेक है बिजनेस ओनर्स के लिए. Yes, so true. So that has been a big unlock for us. Government is so gung-ho about growing EV in the country. So ये सब चीज़ें together are definitely creating a EV ecosystem. And I think Zip has played a pivotal role in doing that because 5 साल से हम राइडर्स को EV का एक्सपीरियंस दे रहे हैं. लोगों का जो एक इनिबिशन है कि भाई रेंज एंग्जाइटी है उनको कि रेंज नहीं है व्हीकल बीच में ख़राब हो गया तो मेरा आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं है, मैं कहाँ उसको मेंटेन कराऊंगा, मेरी 2 साल के बाद स्कूटर ख़त्म हो जाएगी, मैं स्कूटर को लॉन्ग रन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में चला ही नहीं सकता, व्हाट इफ बैटरी जल गई, आग लग गई. वो जो इनिबिशंस लोगों के थे अर्ली टाइम्स में, नाउ दे आर फेडिंग in a big way. So I think this is what Zip is bringing on the table because लोगों का जो पूरा एक इंफ्रा होता है, जब 20,000 व्हीकल्स आज रोड्स पे चला रहा है तो Zip एक पूरे EV इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहा है. फाइनेंसिंग भी अनलॉक हो रही है, फाइनेंसिंग को भी कंफर्ट, बहुत सारे प्लेयर्स को कंफर्ट मिल रहा है. जो आपका स्वैपिंग नेटवर्क है, चार्जिंग नेटवर्क है, दैट इज़ ग्रोइंग. मेंटेनेंस का वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग फॉर द EVs. प्रोडक्ट इज इम्प्रोवाइजिंग. हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इन हैविंग अ बेटर प्रोडक्ट फॉर B2B मार्केट्स. अगर वो रोबस्ट प्रोडक्ट मार्केट में आता है देन हाफ ऑफ योर बैटल इज सॉल्व, राइट? सो आई वुड से दैट जिप का विजन तो है कि जिप को इन द नेक्स्ट 5 years, लेट्स से 5 years में लास्ट माइल डिलीवरी को इलेक्ट्रीफाई करना है. देयर शुड बी ऑल व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड शुड बी EV. दैट इज आवर विजन बिकॉज दैट्स द ईजिएस्ट वे टू. टू-व्हीलर या टू-व्हीलर आल्सो? See, we are doing 2-wheelers, so of course our vision is, but the industry would grow in itself because EV adoption is obviously is much better. The industry is growing with a 30% CAGR. हम लोग 90% से ग्रो कर रहे हैं, so of course वो impact है. थोड़ा मुझे पर्सनली भी हेल्प कीजिए ना. So I had recently driven my EV to Jaipur and जब 70 किलोमीटर बचा था जयपुर पहुंचने में तो बैटरी दिखा रहा था 68 किलोमीटर जाएगा और शायद मैंने कोई मोड चेंज करा था, ड्राइव मोड या व्हाटएवर, इट स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर बैटरी, राइट? इट वाज स्लाइटली पैनिक सिचुएशन कि तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा. एंड देन स्टार्टेड द सर्च ऑफ वेयर डू आई चार्ज एंड देन आई रियलाइज ये 2-3 ऐप है, मे बी आई शुड हैव डन दैट बिफोर. बट व्हेन यू आर टेकिंग योर बाइक और योर कार, व्हाट आर सम प्रेवलेंट एप्स or reference material you should be aware of in terms of charging infrastructure? See, honestly, Zip के साथ तो बहुत strong partnerships हैं. All the swapping partners, big swapping partners in the country, जहाँ पर भी हम located हैं. So we this is battery swapping. Battery swapping. Okay. So all our riders have those locations mapped in their app. अच्छा. So they can easily locate कि कहाँ पर उन्हें जाना है. ऐप में Zip की सो सन मोबिलिटी की ऐप है, जैसे हम सन मोबिलिटी के साथ काम करते हैं, मूविंग के साथ काम करते हैं. Yes, but I think they're not in 4-wheelers. No problem. They are mostly in 2-wheelers and 3-wheelers.
राइट. सो सन मोबिलिटी है, मूविंग है, सो दे हैव मल्टीपल. सो जैसे दिल्ली एनसीआर में उनके 500 से ज़्यादा शॉपिंग स्टेशन हैं आज की डेट में. एंड जोग्राफिकली बहुत ही स्ट्रांगली दे आर लोकेटेड बिकॉज उन्होंने इंडियन ऑयल के साथ पार्टनरशिप की हुई है. सो ऑल द पेट्रोल पम्प्स हैव देयर शॉपिंग स्टेशंस. सो आप अगर शॉपिंग के थ्रू अपना व्हीकल चला रहे हो तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. यू विल बी सॉर्टेड इन एवरी पॉसिबल वे. आप घर पे चार्जिंग कर रहे हो तो वी इंश्योर कि आपके पास गुड 120 किलोमीटर की रेंज है टू रन दैट व्हीकल. बिकॉज अभी देखो इंडिया में ऑनेस्टली इतना इंफ्रा क्रिएट नहीं हुआ है, राइट. तो वी कितने साल लगेंगे? मेरे ख्याल से another 3 to 4 more years. तो आपके 2030 वाला विजन आई थिंक yes गवर्नमेंट साथ चल रहा है मेरे ख्याल से. तो दैट वुड बी अ टाइम जब हम काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाएंगे. ऑफ कोर्स इट वुड हैव सी व्हाट इंटरनेट वाज इन द 90s इज व्हाट वी आर टुडे इन द ईवी सेक्टर. तो इट विल हैज इट्स ओन शेयर ऑफ इवॉल्वमेंट. बट देन काफ़ी लॉन्ग वे वी हैव कम फ्रॉम वेयर वी वर टू टुडे. जिप कितना बड़ा है राशि? थोड़ा साइज इन टर्म्स ऑफ मे बी नंबर्स इफ यू वांट टू शेयर. सो जिप कितना बड़ा है? जिप ने अभी लास्ट ईयर 450 करोड़ का रेवेन्यू किया है. Yes, and we have good 20,000 scooters running on the roads today. We have 900 L5 and L3 loaders running on the roads. We are in Delhi. L5 L3 loader क्या होता है ऑडियंस के लिए बताइए. बड़े ट्रक्स होते हैं जो कि बड़े शिपमेंट्स को कैरी करते हैं, राइट. हम अभी दिल्ली एनसीआर में हैं, बैंगलोर में हैं, मुंबई में हैं. These are the prominent cities that we are currently working in. Delhi, Mumbai, Bangalore. Yes. Highly prominent. Yes. And we are working with all the big players. So we are industry agnostic. Be it bike taxi, be it food delivery, be it quick commerce, be it e-commerce. We are working with all the clients. And that is the beauty of Zip, that we need not to worry about any client not working with Zip, getting less demand. आज भी हम इतनी demand में बैठे हुए हैं कि every client wants us to, do at least 10,000, scooters for them, or I would say 10,000 delivery partners they want from Zip. Right. That's the kind of massive demand you Zip have is more sitting demand with. than you're able to fulfill. That is the beauty of our business. We are sitting in a gold mine, I would say, that we have, if any business would have a problem of demand. Yeah. We are one company who has a problem of fulfilling that demand. Wow. And in terms of possible future growth, आपको लग रहा है this particular space will keep growing? In terms of the B2B space, B2C of course will keep growing, but the B2B space will also keep growing. See, हम क्या कर रहे हैं? हम rentals कर रहे हैं, and we are promoting last mile delivery for these clients through our rentals. This is what we are doing. आज की डेट में 20 से 25% e-commerce penetrated है. आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे कितनी टेक्नोलॉजी ग्रो होने वाली है, कितना ई-कॉमर्स ग्रो होने वाला है, कितना जो नॉर्मल जनता है वो ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली है? अगर वो ग्रो होगा तो इट इज़ गिवन दैट लास्ट माइल डिलीवरी इज गोना ग्रो. इट इज़ गिवन. मतलब there is no question about it. It has to be a very growing market. Up to Zip whether they are able to kind of sustain that. मतलब अगर हम तो कहते हैं कि अगर हम 10 से 15% मार्केट भी कैप्चर कर ले, we can be like crazy, touching the sky. It's that kind of crazy growth that you can have. आपको पैसे पसंद है? किसको नहीं पसंद है? कितना पैसा बनाना है? क्या सवाल है? नहीं मतलब is there a monetary target also that you have? See, मेरे को I don't know if I can put a number to it. Okay. But of course, I have a vision to where I want to reach. And this is you and Akash together? And Akash has a next level. I am like, I want to be financially grounded. free. I want to be having the freedom to do whatever I want to do. मैं जो चीज़ पे हाथ रखूँ, I should have the liberty of, have the possibility of buying it. But I am not a very, I would say materialistic is not the right word. But मैं बहुत ज़्यादा, no, I don't get driven by good houses or cars or, things that probably people are driven by. I'm more. मेरे को काम करने में बहुत मज़ा आता है, and that is what I'm happy with.
मतलब अगर फ्रीडम मिल जाए, लेट्स से यू हैव इनफाइनाइट मनी, व्हाट आर द फर्स्ट वन और टू थिंग्स दैट यू विल डू? फर्स्ट 2 थिंग्स, या ट्रैवलिंग करूँगी, वर्ल्ड टूर करना है, पूरा वर्ल्ड टूर करना है, वर्ल्ड टूर करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आज नहीं कर सकते, बट आज काम है, आज बहुत काम है, काम करना है, तो उस पर फोकस है। बट अगर एकदम फ्री होंगे तो वो करूँगी। ट्रैवलिंग बहुत करनी है, ट्रैवल करना है, और मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है, विच आई वुड वांट टू डू। या इंटरेस्टिंग। और आई एम टेम्प्टेड टू आस्क क्या सीखना है, बट कब तक काम करना है राशि? मतलब डू यू वांट टू वर्क टिल 60-65? मैं ऐसा सोचती हूँ कि ना ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि काम आप एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए करते हो। काम गिव यू पर्पस, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मेकिंग मनी। काम अगर आप करना छोड़ दोगे तो यू विल गो क्रेजी, सो यू हैव टू डू इट टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। बट वो आप क्या काम करो डिपेंड करता है। Like I still remember when I was very young, I was sitting with my Mausa ji, and I very simply asked him कि Mausa ji, अब now you're 70 years old, why are you working? Just relax, enjoy करो। And मेरे को ना वो बात इतनी हिट करी थी कि वो हमेशा it is very close to my heart. And he said कि बेटा, my mother is 100 years old. That time his mother was alive. And he said that today also I tell her कि ये लो मटर छीलो, ये लो सब्जी काटो, चलो वहाँ तक घूम कर आओ, मुझे ये लो, ये बुनाई करो। मैं उनको आज भी बिजी रखता हूँ, क्योंकि अगर वो खाली रहेंगी ना, देन दे विल वेट कि उनका टाइम कब आएगा। बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मुझे लाइफ लॉन्ग काम करना है। आई वुड नेवर वॉन्ट टू रेस्ट। बट क्या काम करना है वो डिपेंड करेगा। मे बी जितना रिगरस काम आज कर रहे हैं शायद उतना काम नहीं करना होगा, जितना टाइम एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जितना आप एफर्ट डाल रहे हो और जितना बर्न आउट हो रहे हो। मे बी आई वुड वांट टू स्लो डाउन, बट आई वुड ऑलवेज वांट टू वर्क ऑल माय लाइफ। व्हाट्स द लास्ट फीलिंग जब आप सोने जाते हो कि आजकल इन दिस बिजी शेड्यूल एंड दैट 3 hours in the morning, then that full heavy day at work, सोने से पहले what is Rashi thinking normally? Honestly, आफ्टर कमिंग बैक होम ना, मैं काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, बिकॉज अदरवाइज आई डेफिनेटली बर्न आउट। आप सुबह से लेके शाम तक 9 बजे तक वर्क के बारे में सोच रहे हो, तो मेरा स्ट्रेस बस्टर इज माई डॉटर, एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर रीचिंग बैक होम। तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैं उसके साथ खेल रही होती हूँ। हम बेड में मस्ती कर रहे होते हैं, हमारा एक नाइट रूटीन है मेरा और मेरी डॉटर का, शी 6 years old, और हम वो फॉलो कर रहे होते हैं। देन उसको जिम्नास्टिक्स बहुत पसंद है, तो आधे टाइम वो हेड स्टैंड्स कर रही होती है, मैं उसको हेल्प कर रही होती हूँ। दिखा भी रही होती है आपको हाँ, आने के बाद क्या शी वुड बी आल्सो शोइंग यू कि मैंने ये नया चीज सीखा। तो रात को मैं बहुत क्लियर माइंड के साथ सोती हूँ कि आज का दिन इज डन, नाउ जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, स्लीप, कल लेट्स स्टार्ट फ्रेश एंड डू व्हाटएवर वी नीड टू डू टुमारो। सो या अभी तक का बिगेस्ट फेलियर क्या रहा है आपके हिसाब से? Biggest failure? I think every small thing in your life is a learning. I would never call anything as a failure. But मैं बस इतना बोलूँगी कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने बिजनेसेस में करते हो, जिनसे आप सीखते हो और इम्प्रोवाइज़ करते हो, बस वही होती हैं। जैसे जब हमने रेंटल शुरू किए थे, तो हमने एकदम से बहुत सिटी स्टार्ट कर दी थी। मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, हमारे पास बहुत लिमिटेड स्कूटर्स थे। तो मैं ये बोलूँगी, एंड वेरी सुन वी रियलाइज के वी डोंट नीड टू गो सो वाइड, वी हैव टू गो डीपर, राइट? बिकॉज डीपर जाने से आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, आप प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर सॉल्व कर पाओगे, और जब डिमांड वहाँ पर है तो आपको इतना ज़्यादा वाइड क्यों करना है अपने बिजनेस को? एंड दैट लर्निंग ड्यूरिंग दैट टाइम इज समथिंग दैट वी स्टिल फॉलोइंग। तो अभी भी 20,000 स्कूटर होने के बाद भी हम सिर्फ दिल्ली, एनसीआर और बैंगलोर, मुंबई में ही हैं। जब भी हमसे कोई पूछता है कि आप बाकी न्यू सिटीज़ कब लॉन्च करो, हम कहते हैं भी बहुत स्कोप है इन सिटीज़ को ग्रो करने का, तो वी नॉट गोना ग्रो दो सिटीज़। सो यही लर्निंग्स हैं, ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमने सीखी हैं इन आवर बिजनेस, जो वी कीप डूइंग, लर्निंग, एंड देन इतने सारे फाउंडर्स बोल चुके हैं ना आज तक कि अबाउट गोइंग डीप एंड नॉट गोइंग वाइड, एंड दैट्स वेयर ऑल द सक्सेस लाइज। एंड जब पहली बार मुझे भी बोला गया था, इट लुक लाइक कि मैं इन कंट्रोल, मैं कर लूँगा 5 शहर। व्हाई आर यू आस्किंग मी टू ओनली बी एट वन प्लेस?
but now after this whatever little exposure, it is a very very important truth also Yeah. for young aspiring entrepreneurs. अगर आपका business एक शहर में 5-10% मार्केट शेयर ले पा रहा है, वो बहुत बेटर है 5 शहरों में 1% मार्केट शेयर लेके काम करें. करेक्ट ऑल्सो आप खुद फिजिकली एक ही शहर में रह सकते हो ना. करेक्ट And So true. आपके तरह ओनरशिप बाकियों का होगा नहीं. तो आपने बॉम्बे या बैंगलोर में भी फाइनली जिसको बिठाया होगा, Yeah. उसमें ओनरशिप डेवलप करने में भी टाइम लगा होगा. करेक्ट आई थिंक इट बिकम्स आई थिंक फाउंडर्स इसलिए भी ये करते हैं कि ना लोगों को स्केल दिखाना होता है. हाँ. इट बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट कि Feel वी आर भी इन आता है 5 वैसे cities, वी आर इन 8 cities. हाँ. वो गलती नहीं करनी है. हाँ. मतलब राइट तरीके से बिजनेस को ग्रो करना है. दैट शुड बी द फंडामेंटल थिंग दैट एज अ फाउंडर यू शुड डू. वी शुड नॉट गो विद इमोशंस, वी शुड गो विद द राइट बिजनेस, लॉजिकल बिजनेस दैट यू हैव टू बिल्ड. राइट. एक अगर इफ यू वांट टू लीव मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज राशि फॉर आवर बढ़ता इंडिया देखो व्यूअर्स, व्हाट वुड दैट बी? What? Sorry. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक अगर आपको मैसेज छोड़ना है व्यूअर्स के साथ कि इन दिस जर्नी की व्हाट इज वन टिप दैट यू वांट टू लीव विद देम? अगर एज अ वुमेन मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगी सारे वुमेन को कि प्लीज़ बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में. अगर आपको एक इंडिविजुअलिटी चाहिए और आपको अपनी से चाहिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है. एंड इट गिव्स यू सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड वो करनी चाहिए. Be financially independent. यस. Very important. And you are asking them not to marry husbands who earn well? Not at all. They should definitely marry husbands who earn well. Why not? If they get the opportunity. Okay, I was joking. We'll come to the last section, Rashi, of our podcast, which is the rapid fire round. Okay. And this is where you have to be fast, and it has to come from the heart. Okay. Right? Single sentence questions और उसका single statement answer. Okay. ठीक है, whenever you are ready. ठीक है. We can go? Sure. Okay, राशि, zip को एक word में क्या बोलेंगे आप? Green. ग्रीन. आपके लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट? एक unforget. My wedding. योर वेडिंग. ओके. एक ईवी स्टार्टअप जिप के अलावा जो आप बहुत एडमायर करते हैं? Tesla. इजी. टफर क्या है स्टार्ट करना, जब कंपनी शुरू होती है या जब कंपनी स्केल होती है? Both. एक चूज करना हो तो? Start करना. एक मस्ट रीड बुक जो आप फाउंडर्स को बोलेंगे पढ़ना चाहिए? Beyond Entrepreneurship by James Collins. ईवीज का मिथ क्या है जो आपको लगता है कि ये सच नहीं है, लोगों को बस लगता है? ईवी का मिथ ये है कि ईवी का मिथ कि इट्स येट नॉट देयर. काफ़ी इवॉल्व हो चुका है. पीपल शुड हैव नाउ मोर अडेप्टेबिलिटी. यू कैन ट्रस्ट कि तुम ईवी टेस्ट कर सकते हो. ओके. कॉर्पोरेट लाइफ का एक पार्ट जो आप मिस करते हो फाउंडर बन के? फ्रेंड्स, पार्टीज एंड फ्राइडे इवनिंग्स. Friends are the deep thigh. You're right. Very difficult to now have friends. Yeah. In this stage of life. And Friday evenings. Friday. Which I used to look forward when I used to work in corporate. अब तो पता ही चलता Friday evening कब आती है, कब चली जाती है. हाँ, you're right. कल Friday था. कल Friday था. I agree. Okay. एक आप entrepreneur नहीं होते तो क्या बनते? कुछ सोशल में कर रही होती. NGO में शायद I would have been a part. ओके. आपका गो टू हैक क्या है? प्रोडक्टिविटी, अपना एनर्जी बढ़ाने के लिए गो टू हैक क्या है? एनर्जी बढ़ाने के लिए तो एक्सरसाइजिंग, हाँ. बट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए चेकलिस्ट ऑफ राइटिंग थिंग्स. अच्छा, आप लिखते हैं फिर उसको एक एक करके? वेरी इंपॉर्टेंट. यू कांट कीप एवरीथिंग इन योर हेड. हाँ. और दिन की शुरुआत में लिखते कब लिखते हैं? मॉर्निंग. मतलब एज एंड व्हेन आई कीप, जो भी दिमाग में आता है, कीप राइटिंग एंड देन फॉलो दैट एंड देन कट करते जाओ. उससे प्रोडक्टिविटी बहुत बेटर होती है. So for us, for the audience, give us a snapshot of the diary also. We want to show them that मैं बहुत to-do lists that are okay to share maybe. ठीक है. मतलब मेरे नोट्स मेरे लैपटॉप में ही होते हैं, उसमें मैं लिखती जाती हूँ. नोटपैड. ठीक है, I'll share something like that. And this is something so powerful. I've seen it with my own life also. The days I write my to-do in the morning,
There's 90% चांस उस दिन वो काम हो जाएगा और मैं दिमाग में बस लेकर ऑफिस पहुंच तो भूल जाओगे, दिन फालतू काम करते रहोगे, शाम को याद आएगा हे भगवान ये काम करना भूल. I think that's the best way that you can bring productivity in what you're doing. Yeah, last few questions. आपके लिए सक्सेस क्या है एक सेंटेंस में? Freedom. राशि का नाम कुछ और रखना होता तो आप अपना नाम क्या रखते? यार ये क्या क्वेश्चन है? नहीं और राशि का नाम कुछ और रखना होता. If you had राशि का मतलब पता है आपको? It's money. मैंने पूछा था वैसा मतलब कि आपने उस पे भी स्माइल किया था. But मैंने कहा कि it is important definitely. I never thought about it honestly. I don't have a name. लक्ष्मी में भी no okay. Not at all. Bad form of राशि okay. आप अगले जन्म में क्या होना चाहेंगे अगर आपके पास फ्रीडम है तो चूज करने के लिए? अगर फ्रीडम है तो क्या होना चाहेंगे? हाँ. I would be this only. Same. What I am today. Yeah, Same. I'm very content with what I am today. Same. On your last day, what would you be feeling the most? आपको लगता है? Content with whatever I have done in my life. I want to be happy. I want to go with a smile. Okay. आज से 100 साल बाद जब आप नहीं हैं, Zip को आप कैसे देखना चाहेंगे? Electrification all across the world, globally. Globally electrify करती हैं. Yes. Electric shock. Yes. This sounds like an Havells ad. Yeah. but okay, thank Not you. just India, but globally. Thank you very much, Rashi, for coming to Barta India. I think it's been a pleasure. Same here. And very, very honest, candid conversation. I think audience को भी बहुत मजा आया होगा. Thank you so much. I really enjoyed a lot. I think it probably would be my second or third podcast, but I had a gala time. Thank you very much for having me. Pleasure. All right. वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एपिसोड राइट. बहुत बार एज कॉमन मैन हमें लगता है पता नहीं ईवी गाड़ी ले ले या नहीं, चाहे वो कार हो या बाइक हो. हमें अभी भी यही क्वेश्चन चल रहा होता है कि इज इंडिया रेडी, इज द इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी. बट आज राशि के साथ बात करके वी रियलाइज दैट येस, इंडिया इज ऑलमोस्ट रेडी नाउ फॉर एन ईवी रेवोल्यूशन एंड इट इज नॉट इमेजिनेशन एनीमोर, इट इज द रियलिटी. जिप एंड इसकी तरह बहुत सारी ईवी कंपनीज आर टेकिंग जायंट स्ट्राइड्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. एंड उसके साथ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन हाउ द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज गुड और बैड फॉर बिल्डिंग अ लेगेसी ऑफ द फ्यूचर. दिस एंड मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑन बढ़ता इंडिया देखो. अभी जाइएगा मत, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे का बटन और उसके बाद आई विल सी यू अगेन सून. थैंक यू.